Dear students, we have discussed earlier Gauss law. Now we will discuss today application of Gauss law, where it is used. And the first application is electric field due to infinite long straight uniformly charged wire. We have to find electric field due to infinite long straight uniformly charged wire. Okay. Actually it is infinitely long. ये ठीक है, this is the uniformly charged wire. This is the uniformly charged wire, and it is infinitely long. So we will take a small finite length of finite length of wire having length L, and we will calculate electric field due to this wire, due to this length L. Okay, this is, suppose this is the infinitely length wire. It is expanded at infinity. Here expanded at infinity, here infinity, here infinity, but we have taken the length L. Okay, this is the this is the uh, infinitely length wire, and we have taken the certain portion of it. Okay, now because this is the confusion why we have taken L length. Okay, the first thing is completed. Now we have to choose such surface to calculate electric field. Due to that surface, the whole conductor can be covered, a whole conductor can be enclosed, since in Gauss law, the charge inside, we have to calculate the total charge enclosed by the surface. So at first requirement is we have to enclose the whole charge inside that surface what we have chosen. Okay, so we have to choose such surface that can enclose whole conductor. Which type of surface would be? First we have to think, if suppose we choose sphere. If the sphere we choose, so sphere is like this, and the conductor may just come out. Okay, so this will not be a suitable surface for infinitely long conductor. Are you agree with this? Okay, so now we will think about cylinder. If we think about the cylinder is also a long object, and that can cover the whole conductor. Okay, suppose this is the conductor. Now this is the conductor, and now we will choose a surface that can cover the whole. This is the surface, and the length of the conductor is L. We have already, and the radius of the, it is R. It is R. I am not writing here. Okay, and the radius of the cylinder is R, and the cylinder is our Gaussian surface. Okay, cylinder is our Gaussian surface. I am taking so much time
because if you understand one problem, then you can actually apply this thing to all of the other problems, because if you don't understand the first, you can't understand the other. I want to develop your thought process for the Gaussian surface and Gauss law. What are the important for it? I will discuss whole things in this derivation. Okay, now if you see, there are three surfaces. It is the upper surface, surface 1. It is the surface 1. It is surface 2, and it is surface 3. I think this thing is clear to all of you. A cylinder has three surfaces, 1, 2 and 3. Now एंड टेक और कुछ और भी समझिए थोड़ा सा। जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो कुछ ऐसी निकल रही होंगी, ऐसी, ठीक है, इस तरीके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो बेसिकली इन सबको कवर करने के लिए, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी कुछ कुछ कवर करने के लिए हमें एक ऐसी सरफेस चाहिए होगी। ये किस में पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेंडर में पॉसिबल, जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग भी हो। आप देखो तो ये आपको इस तरीके दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। जैसे ये है सरफेस, तो इसके ऊपर ऐसा कुछ दिखेगा। समझ में आ रही है ना बात आपको? ओके, तो इन सबको कवर करने के लिए हमें सिलेंडर ही चाहिए। तो यहाँ पे जो ये कवर होगा वो सिलेंड्रिकल सरफेस से कवर होगा। एक चीज़ समझ में आ गई। और इसमें जो है, इसमें 3 सरफेसेज होंगी। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये आपकी सरफेस 3 है, ठीक है। बात समझ में आ गई? सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3, ठीक है। अब देखो, जो आपकी सरफेस 1 है, इसमें यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही होगी। हम एक ही डायरेक्शन एक्चुअली मानते हैं। जैसे हमने ये पॉजिटिव वाली सरफेस मानी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इस तरीके जा रही है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और इसका जो फॉर सरफेस 1, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होगा। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पे ई और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो अगर इस सरफेस के लिए हम गॉस लॉ कैलकुलेट करें तो गॉस लॉ क्या होता है? फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस का अगर इसको ओपन करेंगे तो ई डी एस इंटू कॉस 90। तो यहाँ पे जो फाई आएगा वो 0 आ जाएगा। क्लियर? मतलब सरफेस नंबर 1 के लिए क्लियर हो रही बात? आपको पहले तो आपको एंगल ही देखना है। तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ई और डी एस के बीच में, डी एस मीन्स एरिया वेक्टर, जो एन कैप है वो एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो मैंने इसको इस सरफेस, ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस एरिया वेक्टर को बनाया है, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला तो आपका गया। ऐसे ही अब सरफेस 3 की बात करें तो इस सरफेस 3 में देखो, यहाँ पे जैसे इससे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ठीक है। और इसमें जो एरिया वेक्टर होगा ये भी आउटवर्ड होगा। एरिया वेक्टर विल ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। एरिया वेक्टर विल ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी फाई इक्वल टू या फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो ई डॉट डी एस करोगे तो ई डी एस कॉस 90 होगा, कॉस 90 होगा तो कॉस 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी फ्लक्स यहाँ से क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ई और डी एस की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखो इसकी सरफेस ये वाली है, सरफेस 2 जो है वो ऐसी है, तो यहाँ से जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। भाई ये सरफेस है ना, सरफेस कौन सी है? ये वाली, ये सरफेस अब हम ले रहे हैं, इतनी वाली। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर ही की तरफ आउटवर्ड होगा, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, भाई देखो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ रही है, तो इनके बीच का एंगल 0 है, इनके बीच का एंगल 0 है। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल 0, तो ई डी एस इंटू ई डॉट डी एस करेंगे पहले, फाइव इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस क्या हो जाता है? ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 1, तो ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर? इसके आगे हम आगे डिस्कस करेंगे, इतना समझ लो। इस वाले के लिए आपका फ्लक्स कैलकुलेट होगा, क्योंकि जो एंगल है इन दोनों के बीच का, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, वो 0 है, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा इस सरफेस, फॉर सरफेस 2 के लिए। For surface 2 flux will be calculated, and for surface 1 and surface 3 flux will be 0. ओके, अब बात करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि मैं सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि तो पॉजिटिव से तो इधर भी तो निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए। यस, यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर, क्योंकि भाई ये देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है। ये आपको मैं बता दूँ इसी केस में है, ये हर केस में नहीं चलेगा, क्योंकि जो सर इसको हम ले रहे हैं, इसको चारों तरफ ले रहे हैं, मतलब अराउंड में ले रहे हैं, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। अगर वन साइड होगा तो एक ही साइड चलेगी, ये आप ध्यान रखना, अदरवाइज कहीं पे आप फिर कंफ्यूजन में आ जाओगे। ठीक है, इसी लेकिन हम डिस्कस आपसे कर रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर रहे। ठीक, तो ये बेसिकली आपको अगर ये ऐसा दिख रहा है तो ऐसा ना होगा, क्योंकि मैंने जो सिलेंडर तो चारों तरफ होगा ना, उसको चारों तरफ से इनक्लोज कर रहा होगा। तो जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर भी आप ये मान के चलो चारों तरफ हो। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकल रही होंगी, ये समझ लो, इसलिए दोनों साइड पे लिया जा रहा है। और यहाँ पे भी जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा ही होगा, एरिया वेक्टर यहाँ पर भी कैसा होगा? इसी के सरफेस के अलॉन्ग होगा, मतलब सरफेस के नॉर्मल होगा। तो ई और एन का, तो ई और एन का जो एंगल होगा, ई और एन का जो एंगल होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, वही सेम चीज़ आएगी। क्लियर हो रही बात? यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। ठीक, तुम्हारे समझ में इतनी चीज़ें क्लियर हो गई? यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं। ठीक, अब देखो, ये मैंने गॉसियन सरफेस क्यों ली है, इसका भी सिलेंडर क्यों लिया, गॉसियन सरफेस सिलेंडर क्यों लिया, क्योंकि ये होल कंडक्टर को कवर कर सके। और इसके अलावा ये सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, और ये मैंने बाईं तरफ भी इसमें ई और एन को शो किया हुआ है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो फाई 1 और फाई 3 आपके 0 हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एंगल है ई और डी एस के बीच में 90 डिग्री है। ठीक है, तो फाई 1 इक्वल टू फाई 3 इक्वल टू 0, तो फाई इक्वल टू फाई 2, केवल सरफेस 2 के लिए ही आपका ये आएगा। ठीक है, फ्लक्स कैलकुलेट होगा। तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस आपका हो गया ई इंटू एन कैप इंटू कॉस 0, क्योंकि एंगल क्या है? 0। ठीक है, तो इंटीग्रल एन कैप एक्चुअली डायरेक्शन है, इतना समझ लेना। ठीक है, एन कैप क्या डायरेक्शन, एरिया वेक्टर आपका डी एस ही है, एन कैप क्या केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक, तो ई इंटीग्रल डी एस, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं?
डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो चुका था। इंटीग्रल ई डॉट डी एस यहाँ तक क्लियर हो चुका था। उसके बाद देखिए टोटल सरफेस ऑफ द सिलेंडर क्या है, 2πr l। क्योंकि जो डी एस है, डी एस का मतलब क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं टोटल ओवर द सरफेस। तो टोटल जो सरफेस एरिया होता है उसका 2πr l होता है। L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर एंड R इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू 2πr l। फाई जो डी एस होगा, डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πr l। इंटीग्रल ऑफ डी एस की वैल्यू हो जाएगी 2πr l। तो फाई इक्वल टू E इंटू 2πr l। phi is equal to E into 2πr l according to Gauss law. Phi is equal to integral E dot ds is equal to q upon epsilon naught. Phi is equal to q upon epsilon naught, and then phi is equal to E into 2πr l is equal to q upon epsilon naught. Then E is equal to q upon 2 pi epsilon naught r. Okay, because we have to calculate electric field. Since wire is uniformly charged, so we have to use linear charge density lambda. Lambda is equal to what? Total charge divided by the length. Charge divided by the length. Linear charge density. Charge per unit length. Okay. So now putting the value of lambda by lambda in the above equation, E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r. यहाँ से आंसर आ जाए। Q अपॉन L को आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon naught r. So we get E proportional to 1 upon r. So final expression is E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r, and the graph between E and R is rectangular hyperbola. Okay, it is clear to all of you. Thank you.